Hello students, welcome back to the online studies. In today's session, you are going to study about your subject Social Science of Standard 7th, Chapter number 8, Delhi during Medieval Period, Part 2. In the Part 1, we have discussed about three dynasty, Slave dynasty, Khilji dynasty, okay, and one more also, which name is the Tughlaq dynasty. So now in today's session we will discuss about the Hindu kingdom of Vijayanagar. During the Sultanate period, there were attempts to establish authority over South India. Alauddin Khilji was the first ruler to launch an attack. He carried away numerous wealth from Devgiri. That means at the Vijayanagar, okay, the Sultanate period, during that time many of the rulers have started to establish their authority in the South India also. And Alauddin Khilji was the first person to launch the attack. And through this only he had taken a huge amount of wealth from the Devgiri. Subsequently, Malik Kafur destroyed the kingdom of Warangal. Okay, this too, the Alauddin Khilji and Malik Kafur, you can see in the movie Padmavat. Okay, it is a very good movie. So these two characters are present in the movie. Okay, so Malik Kafur destroyed the kingdom of Warangal and the condition of South India worse during the time of Muhammad Tughlaq. That means जो साउथ इंडिया का जो कंडीशंस था जब मलिक कफूर ने वरंगल को तोड़ा, ओके, किंगडम को डिस्ट्रॉय किया, तो जो साउथ इंडिया का टाइम था, ओके, उनका जो रीजन था वो एकदम टूट सा गया था ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. Simultaneously, the Hindu empire of Vijayanagar and the Bahmani Sultanate were also established in South India. और उसी टाइम पे जो हिंदू एम्पायर थे विजयनगर के एंड द बहामनी सुल्तनेट, उन दोनों ने भी क्या किया, वहाँ पे साउथ में अपना रूल एस्टैब्लिश किया. After the defeat of the ruler of Warangal, the true brothers of Jadhav clan, Harihara and Bukka, established the Vijayanagar kingdom under the inspiration of Swami Vidyaranaya. तो ये चीज़ है कि जब वरंगल डिफीट हो गई थी, ओके, उसके बाद जो दो भाई थे उनके जादव क्लैन के, जिनका नाम क्या था, हरिहरा एंड बुक्का, दे हैव एस्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम. ठीक है, वहाँ पे, और किसके अंडर उन्होंने ये किया था, स्वामी विद्यारण्य. ओके, सो द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द साउथ ऑफ तुंगभद्र रिवर in the year 1336 CE Common Era. Within a short period of 8 years, the kingdom was extended from the river Tungabhadra to the Kanyakumari. So that is why we can see the region of South India, which is very vast. It was started in the year 1336 CE. Bukka ascended the throne after the death of Harihara. His descendants being weak, and a new dynasty came into the power. Krishna Dev Varya was a founder ruler of the dynasty. Krishna Dev Raya's rule flourished in South India. तो यहाँ पे भी है कि जो हिंदू रूलर थे उसमें भी एक के बाद दूसरे किंग वहाँ पे रूल करने के लिए आ गए. ठीक है, बुक्का ने थ्रोन संभाला, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा. और जब बुक्का की डायनेस्टी, उसका जो पावर है वो कम हो गया था, उसके बाद कृष्ण देव राया, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे डायनेस्टी पे रूल करना स्टार्ट कर दिया साउथ इंडिया में. ही हैड गुड रिलेशनशिप विद द यूरोपियंस एंड वॉज अ लवर ऑफ आर्ट and the literature.
You have seen that the rulers of India was not just an king but the lover of many art, literature, architectures also. Okay, तो ये जो रूलर्स थे, कृष्ण देव राय जो रूलर थे, वो भी सिर्फ रूलर नहीं थे, उन्होंने यूरोपियंस के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रखे थे एंड ही वॉज ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. He constructed canals in South India with the help of an engineer called Yomki. तो ये जो एक इंजीनियर है योमकी, इसके हेल्प से उन्होंने एक कैनाल भी बनाया साउथ इंडिया में. ओके. Foreign travelers who visited Vijayanagar have appreciated its grandeur. There were grand temples and forts in the kingdom. और जो यूरोपियंस कंट्री से या फिर दूसरे कंट्री से जो विजिटर्स इंडिया में आते थे, वो ये जो कृष्ण देव राय थे उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं इतने बड़े बड़े. ओके. द ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ तलीकोटा. तो एक वर्क है आप सबके लिए, यू हैव टू सर्च अबाउट दिस बैटल, अबाउट द बैटल ऑफ तालीकोटा. तो इसके अंदर एक खाली एक लाइन बता देता हूँ कि ये जो ग्लोरियस जो किंगडम था वो डिस्ट्रॉय हो गया था इन द बैटल ऑफ तालीकोटा. तो ये चीज़ आपको रेफर करनी है इंटरनेट पे, गूगल, यू हैव टू गूगल इट एंड आई होप यू विल डू इट. नेक्स्ट द पॉइंट इज बहामनी सुल्तनेट. द अमीर्स इन द डेक्कन rebuilt. Hassan, one of the efficient Amirs, became the Sultan and founded the Bahmani Sultanate there. ये चीज़ वापस आ गई. नेक्स्ट किंग आ गए जिसका नाम क्या था, एफिशिएंट अमीर हसन. ओके, जिसका क्या नाम था, हसन. तो हसन जो अमीर्स जो डायनेस्टी थी, ठीक है, उनका एक पार्ट था और उसने फिर क्या किया, एक नया सुल्तनेट फाउंड किया, एक नया डायनेस्टी फाउंड किया. उसका नाम क्या दे दिया, बहामनी सुल्तनेट. मोहम्मद गवन was a capable minister and an efficient administrator of the Bahmani Sultanate. He won many territories and extended the boundaries of the Bahmani kingdom. और हर एक किंगडम में अगर वहाँ का मिनिस्टर अगर केपेबल हो तो वो अपने किंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. इसी चीज़ को लेके जो मिनिस्टर थे मोहम्मद गवन बहामनी सुल्तानत के, उसने भी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था. ओके, जो कोर्ट में या फिर अपने किंग को बहुत हेल्प करता था और उसी ने बहुत सारे वॉर लड़े और उसको जीते भी, और जो बाउंड्रीज थी बहामनी किंगडम की उसको और ज़्यादा बढ़ाया. द पावर ऑफ बहामनी सुल्तानेट वीकेंड आफ्टर हिज डेथ. और जो मेन मिनिस्टर थे मोहम्मद गवन, जब वो मर गए थे तो बहामनी सुल्तानेट का जो पावर था वो एकदम कम हो गया था. There was a frequent conflicts between the Vijayanagar and the Bahmani kingdoms. After the downfall of Bahmani Sultanate, many of his provinces became independent. Among these 5 provinces of Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Berar and Bidar become established independent kingdoms. और जब विजयनगर और बहामनी के बीच में, दोनों किंगडम्स के बीच में बार बार फ्रीक्वेंटली वॉर होते थे. ओके, और उसी चीज़ के बीच में जब बहामनी सुल्तानेट का डाउनफॉल हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे उनके बाउंड्रीज में जो एरिया आते थे, ओके, वो क्या हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए. जिनमें से ये 5 नाम है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार एंड बिदार, और वो सब खुद एक इंडिपेंडेंट किंगडम हो गए. नाउ द एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. तो इसके अंदर भी बहुत सारी डायनेस्टीज है, रीड इट केयरफुली. फिरोज शाह तुगलक ascended the throne after Muhammad Tughlaq. However, from the time onwards, the Delhi Sultanate began to weaken. अब जब मोहम्मद तुगलक की मौत हुई तो उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था
उन्होंने he have started to rule in India in the Delhi, and however after the death of Muhammad Tughlaq, the Delhi Sultanate began to weaken. क्योंकि फिरोज शाह जो थे वो एक बेटर किंग नहीं थे. The region of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion and plunder of Delhi by the Timur. The governor of Lahore, Khijra Khan, took advantage of the chaos and established the Shayyad dynasty in the Delhi. The authority of this sultans was limited to the region around Delhi. अब एक किंग हमेशा यही चीज देखता है कि कौन से किंगडम के किंग इतने एफिशिएंट नहीं है. ओके, इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक मेन पर्सन था, द गवर्नर ऑफ लाहौर खिलजीरा खान. उसने भी क्या किया, तुगलक डायनेस्टी जब ये डाउनफॉल हो रहा था तब इसी पर्सन ने, खिलजीरा खान ने, इस चीज़ का एडवांटेज लिया और अपना जो एरिया है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया. लेकिन उसने एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली, लेकिन उसका ऑथोरिटी जो है सुल्तान का वो कहाँ तक था, वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली. दिल्ली के आजू बाजू तक ही उसका जो रूलिंग था वो वहाँ पे अलाउड था. In 1451 CE, an Afghan leader, Sardar Bahlol, established the rule of the Lodhi dynasty in Delhi. His son Sikandar Lodi ascended the throne after this. Okay, तो इसके बाद भी एक नया डायनेस्टी आया. ठीक है, तो ये सब डायनेस्टी छोटे छोटे जिनका रूल बहुत कम टाइम के लिए था, इसलिए इसके रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में नहीं है. Through Sikandar, Lodi had the qualities of a good ruler. He lacked religious tolerance. तो जब अफगान लीडर जो एक थे जिनका नाम सरदार था बहलोल, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक लोडी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया इन द ईयर 1451 CE in Delhi. Then after, his son Sikandar Lodi has ascended the throne after him, and the Sikandar has the good qualities, okay, like he was a good ruler and many more things, but he lacked the religious tolerance. उसको रिलीजियस के बारे में बिल्कुल भी टॉलरेंस पसंद नहीं था कोई भी चीज़ के लिए. The struggle for the throne began after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the ruler of दिल्ली. और उसके बाद क्या हुआ, जो इब्राहिम लोडी थे उसने क्या किया, अपने एल्डर ब्रदर को हराया और वो दिल्ली का एक नया रूलर बन गया. द अमीर्स वेर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंट एटीट्यूड. और जो अमीर जो वहाँ के एक अलग हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो वहाँ के जो किंग थे, ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज उनका जो एरोगेंट एटीट्यूड था, ठीक है, किसका, इब्राहिम लोडी का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. देयर वॉज ए रिबिलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूलर. बाबर द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली इन दिस टाइम. और इसी चीज़ के लिए उन्होंने बार बार उसके ऊपर वॉर करवाया और लास्ट में जो बाबर था एम्परर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम, उन्होंने दिल्ली के अंदर एंटर किया. He defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 CE and founded the Mughal Emperor. और लास्ट में हम सब जानते हैं कि जब एम्परर ऑफ काबुल जो बाबर थे जब रीजन में आए दिल्ली के, ओके, तो उस टाइम इन्होंने इब्राहिम लोडी को बैटल ऑफ पानीपत में हिलाया, हरा दिया, एंड at this time he founded the Mughal emperor, and which lasted for approximately 200 years. और ये चीज़ के बारे में हम सब जानते हैं. तो यहाँ पे एक शॉर्ट यू कैन सी के एक चार्ट तो नहीं बोल सकते, बट दिस हेरिटेज, ये एक चीज़ आप पॉइंट नोट कर सकते हो जिसके अंदर क्या है, जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ है उसका नाम दिया गया है.
फर्स्ट आए थे स्लेव डायनेस्टी, जिसके लास्ट रूलर थे रजिया। देन आफ्टर खिलजी डायनेस्टी, उसके लास्ट रूलर थे जलाउद्दीन। उसके बाद थे द तुगलक डायनेस्टी एंड लास्टली सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के बाद भी छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म किंगडम थे, किंग थे वहाँ के, वो मैंने वो डायनेस्टीज़ के अंदर नहीं लिखी है, दैट यू कैन रेफर इन द लास्ट स्लाइड्स। बट ये मेन डायनेस्टी है जो पूरे हमने चैप्टर में पढ़े हैं और उनके जो एंड में रूलर थे उनके बारे में। सो थ्रू दिस यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड लर्न द नेम। And this was the end of today's session.